کیا واقعی انسان کی تقدیر میں اگر غربت لکھتی جائے تو وہ کبھی نہیں بدل سکتی؟ کیا اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے غریب لڑکے کی ہے جسے لوگوں نے تانا دیا کہ تمہاری تقدیر میں ہمیشہ غربت ہی ہے، مگر پھر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ویران سا گاؤں تھا جو شہر کی ہلچل سے بہت دور ریگستان کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے اور مویشی پالتے تھے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر، سورج کی تپش سے پھٹی ہوئی زمین اور گلیوں میں کھیلتے بچے، یہی اس گاؤں کی پہچان تھی۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں سلیم اور اس کی بیوی زینب رہتے تھے۔ سلیم ایک نہایت نیک اور محنتی انسان تھا، لیکن سخت محنت کے باوجود غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جس میں صرف ایک کمرہ اور ایک تنگ سا صحن تھا۔ اس کے پاس ایک بوڑھا اونٹ اور چند بھیڑیں تھیں جن سے وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا تھا۔ اس کی بیوی زینب بہت صابر اور پرہیزگار عورت تھی۔ اس کا چہرہ نیکی سے روشن تھا، چاہے اس کے کپڑوں پر پیوند ہی کیوں نہ لگے ہوں۔ سلیم اور زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہر روز اللہ سے دعا مانگتے کہ انہیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے۔ کئی سالوں کی دعا کے بعد آخر کار اللہ نے ان کی جھولی بھر دی اور زینب کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سلیم نے اس بچے کا نام عمران رکھا۔ عمران بچپن سے ہی بہت سمجھدار تھا اور اکثر اللہ کا نام لیتا رہتا تھا، مگر جیسے جیسے عمران بڑا ہونے لگا، غربت کے بادل اس کے والدین پر اور زیادہ گہرے ہوتے گئے۔ سلیم کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، کم عمری میں ہی اس کی کمر جھک گئی، اس کا اونٹ بھی بیمار رہنے لگا اور ایک دن مر گیا۔ گھر میں اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سلیم بس اللہ کا نام لے کر گاؤں کی مسجد میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھار لوگوں کی چھوٹی موٹی مدد کر دیتا۔ دوسری طرف زینب پڑوسیوں کے گھروں میں سلائی کر کے کچھ پیسے کما لاتی، لیکن حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب عمران 10 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں کے مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، مگر اس کی کتابیں پرانی اور کپڑے پھٹے ہوئے۔ گاؤں کے امیر بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا سب سے امیر تاجر قاسم اپنے بیٹے کاشف کے ساتھ گلی سے گزر رہا تھا۔ کاشف نے عمران کو اس کے پھٹے کپڑوں میں دیکھا تو زور سے ہنس پڑا اور بولا، ابو ذرا دیکھیں تو عمران کو، اس کے کپڑے تو بھکاریوں جیسے ہیں، کیا یہی ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے؟ قاسم نے نفرت سے عمران کی طرف دیکھا اور منہ بنا کر بولا، اسے چھوڑو کاشف، یہ سلیم کا بیٹا ہے، اس کی تقدیر میں تو غربت ہی لکھی ہے، ایسی محنت کا کیا فائدہ جسے اللہ نے ہی محتاج بنا دیا ہو۔ یہ سن کر عمران کے دل پر ایسا لگا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور اپنی ماں زینب سے لپٹ کر رونے لگا۔ امی، لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں غربت لکھی ہے، کیا واقعی اللہ ہمیں بھول گیا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی محتاج رہیں گے؟ زینب نے پیار سے عمران کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے عمران کے آنسو پوچھے اور کہا، بیٹا عمران، لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ شام کو جب سلیم گھر آیا تو عمران اداس بیٹھا تھا۔ زینب نے اسے ساری بات بتائی۔ سلیم نے عمران کو اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا، بیٹا، قاسم نے یہ تو ٹھیک کہا کہ اللہ نے اسے امیر بنایا ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ہماری تقدیر میں ہمیشہ غربت لکھی ہے۔ تقدیر بدل بھی سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں، مگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ پھر سلیم نے عمران کو ایک قصہ سنایا۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بادشاہت چھن گئی اور وہ بھکاری بن کر سڑکوں پر پھرنے لگا۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا، میں تو بادشاہ تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، تم اللہ کو بھول گئے تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں تمہاری حالت کا احساس دلایا۔ بادشاہ نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور کچھ عرصے بعد اسے پھر اپنی عزت اور مقام مل گیا۔ سلیم نے عمران سے کہا، بیٹا، اللہ کے نزدیک امیری اور غریبی کی کوئی قیمت نہیں، اصل قیمت دل کی صفائی، نیکی اور اللہ پر یقین کی ہے۔ ہم اللہ سے کبھی دور نہیں ہوئے،
اسی لیے یقین رکھو وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ عمران نے اپنے والد کی باتیں غور سے سنی اور اس رات اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی اللہ پر سے بھروسہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر غربت کا یہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ سلیم بیمار پڑ گیا تھا اور اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ زینب نے عمران کو آواز دی اور کہا، بیٹا بازار جا کر دیکھو، شاید کوئی اللہ کا بندہ مدد کر دے، یا پھر قاسم کی دکان پر جا کر کچھ دن کے لیے قرض مانگ لو۔ یہ سن کر عمران کے قدم رک گئے، کیونکہ قاسم وہی شخص تھا جس نے اس کی تقدیر کا مذاق اڑایا تھا۔ مگر ماں کا حکم اور باپ کی بیماری اسے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ عمران نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے درست کیے، ماں سے دعا لی اور آہستہ آہستہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں بڑی رونق تھی، ہر طرف سامان بک رہا تھا۔ آخرکار وہ قاسم کی بڑی سی دکان کے سامنے جا کھڑا ہوا، جہاں ریشمی کپڑے، قیمتی مسالے اور دور دراز ملکوں کا سامان رکھا تھا۔ قاسم اپنے بیٹے کاشف کے ساتھ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا تو بھمیں چڑھا لیں۔ کیا چاہیے تمہیں سلیم کے بیٹے؟ عمران نے ادب سے ہاتھ جوڑے اور کہا، حضور میرے ابا بیمار ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اگر آپ کچھ دن کے لیے قرض دے دیں یا تھوڑی سی مدد کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر قاسم زور سے ہنس پڑا اور اس کی ہنسی پورے بازار میں گونجنے لگی۔ قرض؟ اور تم ایسے واپس کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ قاسم نے حقارت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ تو بھکاری ہو، بس اللہ کا نام لے کر بیٹھے رہتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے تو اسی سے مانگو۔ یہ سن کر اس کا بیٹا کاشف بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے دل میں سوچا، اگر اللہ نے مجھے اس امتحان سے گزارا ہے تو مجھے صبر کرنا چاہیے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں زینب کو ساری بات بتائی۔ زینب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نرمی سے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، انسانوں کی نظر میں ہم بھکاری ہوں گے، مگر اللہ کی نظر میں ہم اس کے بندے ہیں۔ آؤ میں دال میں تھوڑا سا اور پانی ملا دیتی ہوں، ہم وہی پی لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں صبر کی نعمت دی ہے۔ اس رات عمران بھوکا ہی سو گیا، مگر اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اس غربت سے نکلنا چاہتا تھا، مگر نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، نہ کہ کسی غلط راستے سے۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو چکا تھا تو سلیم نے اپنی بیوی زینب سے کہا، سنو زینب، آج عمران کو قاسم نے بہت تکلیف دی ہے، مگر مجھے یقین ہے یہ لڑکا ایک دن قاسم سے بھی بڑا آدمی بنے گا، تم دیکھنا اللہ کی مہربانی ضرور ہوگی۔ زینب نے اعتماد سے کہا، ہاں مجھے بھی یقین ہے، میں روز دعا کرتی ہوں کہ اللہ عمران کو ایسا مقام دے کہ جو آج اسے بھکاری کہتے ہیں کل اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ سلیم اور زینب کی یہ دعائیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رحمت سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی، بس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگلی صبح گاؤں کے مدرسے کے مولانا صاحب سلیم کے گھر آئے۔ وہ سلیم کی نیکی اور زینب کے صبر سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کہا، سلیم بھائی، میں نے سنا ہے آپ بیمار ہیں اور حالات بھی اچھے نہیں، اس لیے میں مدرسے کی طرف سے تھوڑا سا راشن لے آیا ہوں، یہ لیجئے اور اللہ کا نام لے کر استعمال کیجئے۔ سلیم نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے، مگر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مولانا مسکرائے اور بولے، میں جانتا ہوں سلیم بھائی، مگر یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور ہاں عمران کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، وہ بہت ذہین اور سلیقہ مند بچہ ہے۔ مولانا کے جانے کے بعد عمران نے اپنے والد سے پوچھا، ابا مولانا صاحب کہہ رہے تھے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا کمی اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے، ہمیں جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم ضرور ضرورت مند ہیں، مگر ہمارے دل خالی نہیں ہے۔ اصل کمی تو ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے پاس سب کچھ ہو مگر دل خالی ہو۔ ہمارا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم کسی سے کم نہیں۔ یہ بات عمران کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور محنت کرے تو ایک دن ضرور کچھ بن سکتا ہے۔ اسی دن سے عمران کی زندگی میں نیا جوش آ گیا۔ وہ مدرسے میں پہلے سے زیادہ دل لگا کر پڑھنے لگا۔
रात को जब सब सो जाते तो वो मिट्टी के दिए के सामने बैठकर कुरान की तिलावत करता और अल्लाह से दुआ मांगता कि उसके वालिदैन को सुकून और आसानी अता हो। गांव के कुछ लोग सलीम की हालत पर तरस खाते थे, मगर कासिम और उसके कुछ दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, देखो इन फकीरों को, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं मगर भूखे मर रहे हैं। अगर अल्लाह को देना होता तो कब का दे देता। लेकिन सलीम और ज़ैनब इन बातों से बिल्कुल बेपरवाह थे। उनका ईमान पत्थर की तरह मजबूत था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, चाहे देर से ही क्यों ना आए। एक दिन सलीम ने इमरान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो रहे हो, मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। जिंदगी में कभी भी अल्लाह पर से भरोसा मत खोना, चाहे कितने ही तूफान क्यों ना आ जाएं, चाहे ज़मीन और आसमान एक क्यों ना हो जाएं। हमेशा यकीन रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और माँ बाप की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इमरान ने अपने वालिद के पांव छुए और कहा, अब्बा, आपकी बातें मेरे दिल में बस गई हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी अल्लाह से दूर नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इमरान का वो वादा था जो एक दिन उसकी तकदीर बदलने वाला था। और इस तकदीर के बदलने का सिलसिला शुरू हुआ एक अनजान मुसाफिर के गांव में आने से। वो एक बूढ़ा दरवेश था। सफ़ेद लिबास पहने, हाथ में लाठी लिए वो गांव में दाखिल हुआ और मस्जिद में ठहर गया। उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। उसने गांव वालों से सलीम के घर का रास्ता पूछा। लोग हैरान हो गए और बोले, हुजूर, आप इस गरीब के घर क्यों जाना चाहते हैं? वहां तो खाने को भी कुछ नहीं है। दरवेश मुस्कुराकर बोला, जहां अल्लाह का जिक्र हो और सब्र की नेमत हो, वहां खाने से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। फिर वो सलीम के घर पहुंचा। उसने देखा कि घर तो मिट्टी का छोटा सा है, मगर साफ सुथरा है। सलीम बीमार बिस्तर पर लेटा था, मगर उसके चेहरे पर सुकून और नूर था। ज़ैनब ने अदब से दरवेश का इस्तकबाल किया। दरवेश ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे चंद दिन ठहरने की जगह चाहिए। सलीम ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, ये घर आपका है, हमारे पास सिर्फ दाल और रोटी है, मगर वो भी आपकी है। दरवेश उनकी सादगी और ईमान देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सलीम को दुआ दी। रात को जब इमरान मदरसे से वापस आया तो उसने दरवेश को देखा। उनके चेहरे के नूर ने उसे बेइख्तियार उनके कदमों में बिठा दिया। दरवेश ने इमरान के सर पर हाथ रखा और फौरन महसूस कर लिया कि इस लड़के में कुछ खास बात है। उसने सलीम से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? सलीम ने फ़ख्र से कहा, जी हुजूर, ये हमारा इमरान है, हमारी आंखों की रोशनी। दरवेश ने गौर से इमरान को देखा और कहा, इसके चेहरे पर तकदीर की रोशनी नज़र आ रही है, मगर ये रोशनी अभी छुपी हुई है। एक दिन यही लड़का पूरे इलाके को रोशन करेगा। ये सुनकर सलीम और ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। कुछ दिन दरवेश उनके घर रहा। उसने देखा कि इमरान कितना ज़हीन और नेक दिल है। उसने इमरान को कुरान की आयत के गहरे माने समझाए और उसे ज़िंदगी का असल इल्म सिखाया। उसने कहा, बेटा इमरान, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में इल्म होता है। जब तुम दुनिया देखोगे, लोगों की मदद करोगे, तब तुम्हें असल इल्म मिलेगा। ये बात इमरान के दिल में उतर गई। दरवेश के जाने के बाद इमरान ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ मदरसे तक महदूद नहीं रहेगा। वो बाहर निकलेगा, मेहनत करेगा और कुछ बनकर दिखाएगा। लेकिन गांव में उसके लिए कोई बड़ा मौका मौजूद नहीं था और शायद यही वो लम्हा था जब उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ लेने वाली थी। गांव में इमरान के लिए कोई काम मौजूद नहीं था और कासिम जैसे अमीर लोग उसे काम देने से कतराते थे। इसी दौरान एक दिन गांव के चौराहे पर ताजिरों का एक बड़ा काफिला आकर रुका। वो दूर दराज मुल्कों से सामान लेकर आए थे और उन्हें चंद मजदूरों की ज़रूरत थी। इमरान ने मौका देखा और फौरन उनके सरदार के पास पहुंच गया। उसने अदब से कहा, हुजूर, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। काफिले के सरदार ने उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? इमरान ने जवाब दिया, मेरा नाम इमरान है। फिर सरदार ने पूछा, और तुम क्या क्या काम कर सकते हो? इमरान ने एतमाद से कहा, मैं पढ़ लिख सकता हूँ, हिसाब किताब रख सकता हूँ और जानवरों की देखभाल भी कर सकता हूँ। सरदार ने कुछ लम्हे सोचा। उसे लगा कि एक मेहनती और पढ़ा लिखा लड़का उनके काम आ सकता है। चुनांचे उसने इमरान को चंद दिन के लिए अपने साथ रख लिया। इमरान ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया।
वो ताजिरों के ऊंटों की देखभाल करता, सामान की गिनती रखता और कभी कभार हिसाब किताब में भी मदद कर देता। ताजिर उससे बहुत खुश हुए। चंद दिन बाद उन्होंने उसे उसकी मजदूरी दी। ये पहली बार था जब इमरान ने अपनी मेहनत से पैसे कमाए थे। वो खुशी से झूम उठा। वो पैसे लेकर सीधा घर पहुंचा और अपनी माँ ज़ैनब को देते हुए बोला, अम्मी, ये लीजिए, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ज़ैनब ने वो पैसे हाथ में लिए, उन्हें चूमकर आंखों से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलीम ने इमरान को दुआ दी और कहा, बेटा, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तुम्हारे इरादे की ताकत है। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा देगा। उसी रात इमरान ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक बड़े शहर में है और एक बड़ा ताजिर बन चुका है। उसके सामने कासिम और काशिफ खड़े हैं और उससे कर्ज मांग रहे हैं। ख्वाब देखकर जब उसकी आंख खुली तो वो मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, ये तो सिर्फ ख्वाब है, मगर कभी कभी ख्वाब भी हकीकत बन जाते हैं अगर अल्लाह चाहे। चंद दिन बाद ताजिरों का काफिला वापस जाने लगा। काफिले के सरदार ने इमरान को बुलाया और कहा, इमरान, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ शहर चल सकते हो। वहां तुम मजीद सीख सकते हो और बड़ा आदमी बन सकते हो। इमरान के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई, मगर उसने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मुझे पहले अपने माँ बाप से इजाज़त लेनी होगी। वो बूढ़े और बीमार हैं, मैं उन्हें बगैर इजाज़त छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर काफिले का सरदार और भी मुतासिर हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, तुम वाकई नेक और सच्चे इंसान हो इमरान। जाओ, अपने वालिदैन से पूछो, अगर वो राजी हों तो हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इमरान फौरन घर की तरफ दौड़ पड़ा और अपने वालिदैन को सारी बात बता दी। सलीम और ज़ैनब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी दुआएं कबूल होने लगी हैं। सलीम ने इमरान को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जाओ, अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ो। हम हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करते रहेंगे। बस याद रखना, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना और नेकी के रास्ते से कभी ना हटना। ज़ैनब ने इमरान को गले लगाया और एक पुरानी तावीज़ उसके गले में डाल दी, जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। उसने कहा, बेटा, ये हमारी दुआओं की निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। इमरान ने अपने माँ बाप के पांव छुए, उनसे माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ की कि वो उनकी हिफाजत करे। फिर वो ताजिरों के काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। उस दिन गांव वालों ने हैरत से देखा कि वही सलीम का बेटा, जिसे कल तक भिखारी कहा जाता था, आज एक बड़े काफिले के साथ शहर जा रहा है। कासिम ने जब यह मंजर देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें नमूदार हो गईं। अब उसे महसूस होने लगा था कि ये लड़का वाकई कुछ खास है, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान, असल मंजिल और असल कामयाबी अभी बाकी थी। इमरान ताजिरों के काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ माँ बाप को छोड़ने का गम और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी शुरू करने का जज्बा। रेगिस्तान के सुनहरी टीलों के दरमियान से गुजरता हुआ काफिला आगे बढ़ रहा था। ऊंटों की घंटियों की आवाज और ताजिरों की गुफ्तगू के दरमियान इमरान खामोश बैठा अपने वालिदैन की बातें याद कर रहा था। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखना, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अपने गले में लटकी तावीज़ को हाथ लगाया और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे कामयाबी अता फरमा ताकि मैं अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकूं। तकरीबन 10 दिन के सफ़र के बाद काफिला बसरा शहर के करीब पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा और मशहूर शहर था। यहाँ बंदरगाह थी, बड़े बड़े बाजार थे, अमीरों की हवेलियाँ भी थीं और गरीबों की झोंपड़ियाँ भी। इमरान ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। ऊंची इमारतें, रंग बरंगे कपड़ों में लोग, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हुए ताजिर और अजीबो गरीब चीज़ों की दुकानें। वो हैरान रह गया। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। काफिले के सरदार का नाम अबू तालिब था। वो एक बुजुर्ग और निहायत मेहरबान इंसान था। उसने इमरान की मेहनत और सादगी को पसंद किया था। उसने इमरान से कहा, बेटा, ये शहर बहुत बड़ा है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ नेक हैं और कुछ बदनीयत। यहाँ कामयाब होना आसान नहीं,
लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और सच्ची मेहनत करो तो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। अबू तालिब ने इमरान को अपने कारवान सराय में ठहराया। ये एक बड़ा सहन था जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। दरमियान में ऊंट और दूसरे जानवर बांधे जाते थे। इमरान को एक छोटा सा कमरा दिया गया जिसमें सिर्फ एक चारपाई और एक मिट्टी का दिया था। ये एक गांव के घर से बेहतर तो था, मगर इसे अपने माँ बाप की बहुत याद आने लगी। अगले ही दिन इमरान ने काम शुरू कर दिया। अबू तालिब ने उसे गोदाम की जिम्मेदारी सौंप दी। वहाँ मसाले, कपड़े, खुश्क मेवे और कई कीमती सामान के ढेर लगे हुए थे। इमरान का काम था हिसाब किताब लिखना, आने जाने वाले सामान की फहरिस्त बनाना और गोदाम की निगरानी करना। ये काम आसान नहीं था, मगर इमरान ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। वो फजर की नमाज से पहले उठता, वज़ू करता, नमाज पढ़ता और फिर सीधा गोदाम पहुंच जाता। रात देर तक वो हिसाब किताब में लगा रहता। अबू तालिब उसकी मेहनत और दयानतदारी से बहुत मुतासिर होने लगे थे और उन्हें महसूस होने लगा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा ताजिर बनेगा। अबू तालिब इमरान की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने इमरान को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 5 सोने के सिक्के रखते हुए कहा, बेटा इमरान, ये तुम्हारी मेहनत की मजदूरी है। इमरान की खुशी की कोई हद न रही। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में इतने सोने के सिक्के देखे थे। उसने फौरन उनमें से 2 सिक्के एक कासिद के जरिए अपने वालिदैन को भेज दिए और एक खत भी लिखा कि वो खैरियत से है और हमेशा उनकी दुआओं को याद करता है। लेकिन शहर की चमक दमक इमरान के लिए आजमाइशों से खाली नहीं थी। वहाँ कुछ लोग बहुत चालाक और मक्कार भी थे। गोदाम में एक और मुलाजिम था जिसका नाम राशिद था। वो उम्र में इमरान से बड़ा था, मगर काम में बेईमान था। वो अक्सर थोड़ी बहुत चोरी कर लेता और सामान की तोल में भी हेर फेर कर देता था। अबू तालिब को उस पर शक तो था, मगर सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। राशिद ने जब देखा कि इमरान ईमानदारी से काम करता है तो उसे इससे हसद होने लगा। उसने सोचा कहीं ये नया लड़का उसकी चोरी पकड़वा ना दे। एक दिन उसने इमरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, इमरान भाई, तुम शहर में नए हो, आओ मैं तुम्हें बाजार की सैर कराता हूँ। यहाँ के बाजार बहुत रंगीन है, तुम्हें मजा आएगा। इमरान ने सोचा कि शहर देखना अच्छा होगा। वो राशिद के साथ बाजार चला गया। राशिद ने उसे मुख्तलिफ दुकानें दिखाईं, मिठाइयाँ खिलाईं और फिर उसे एक शराब की दुकान के सामने ले गया। वो बोला, देखो इमरान, यहाँ बड़ी मज़े की चीज़ मिलती है, ज़रा पी कर तो देखो, सारे गम भूल जाओगे। ये सुनकर इमरान चौंक गया। उसने फौरन कहा, राशिद भाई, ये तो हराम है, हमारा दीन इससे मना करता है, मैं ये नहीं पी सकता। राशिद हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, यहाँ सब पीते हैं, यही तो मज़ा है। अल्लाह ने ये चीज़ बनाई है तो पीने के लिए ही बनाई होगी, थोड़ी सी पी लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इमरान के दिल में एक खटक सी हुई। उसे अपने वालिद सलीम की नसीहत याद आई, बेटा, कभी हराम की तरफ कदम मत बढ़ाना, चाहे दुनिया में कोई ना देखे, अल्लाह सब देख रहा होता है। इमरान ने मजबूत लहजे में कहा, माफ़ करना राशिद भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपने अल्लाह का खौफ है। राशिद ने उसे बेवकूफ़ समझा, मगर इमरान अपने उसूलों पर कायम रहा। वो वहाँ से खामोशी से वापस कारवान सराय आ गया। इस रात उसने बहुत रोकर अल्लाह से दुआ की कि वो उसे गुमराही से बचाए। कुछ दिन बाद राशिद की हकीकत सबके सामने आ गई। वो एक बड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया। अबू तालिब ने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया और हुक्काम के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने इमरान को और ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी। अब इमरान गोदाम का निगरान बन चुका था। एक दिन अबू तालिब ने इमरान को बुलाया और कहा, बेटा इमरान, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम ईमानदार और मेहनती हो। मैं तुम्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। कुछ महीनों बाद हमारा एक बड़ा काफिला हिंदुस्तान जाने वाला है। मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो इस काफिले की क़यादत करे, और मैं चाहता हूं कि तुम ये जिम्मेदारी संभालो। ये सुनकर इमरान हैरान रह गया। वो बोला, हुजूर, मैं तो अभी नया हूं, मैं इस काबिल कहाँ? अबू तालिब मुस्कुराकर बोले, तुम में काबिलियत है, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारे साथ कुछ तजुर्बाकार लोग भी भेजूंगा। इमरान ने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मौका है। उसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। लेकिन अबू तालिब ने एक शर्त रखी, इस सफ़र से पहले तुम्हें तिजारत के तमाम उसूल सीखने होंगे।
बाजार के तरीके, लोगों से मामलात और सौदेबाजी के उसूल भी। इमरान ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद के महीने इमरान के लिए बहुत मुश्किल थे। वो सुबह से शाम तक अबू तालिब के साथ रहता और तिजारत के गिर सीखता। वो मसालों की कीमतें याद करता, कपड़ों की किस्में पहचानता और तौलो तराजू के पैमाने समझता। रात को जब वो अपने कमरे में आता तो थका हुआ होता और अक्सर अपने वालिदैन को याद करके आंसू बहाता, क्योंकि उसके भेजे हुए पैसों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने गांव के एक आदमी से हुई जो शहर में सामान बेचने आया था। उसने इमरान को पहचान लिया। इमरान ने बेचैनी से पूछा, चचा, मेरे अब्बा और अम्मी कैसे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, वो अक्सर तुम्हें याद करते हैं, और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए ये खत दिया है। उसने इमरान को एक पुराना खत दिया जो मोम से बंद था। इमरान ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें उसकी माँ ज़ैनब की तहरीर थी। मेरे प्यारे बेटे इमरान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम खैरियत से हो और अपनी मेहनत से कमा रहे हो। तुम्हारे भेजे हुए पैसे हमें मिल गए। उनसे हमने तुम्हारे अब्बा का इलाज करवाया और कुछ खाने का सामान लिया। तुम्हारे अब्बा को तुम पर बहुत फ़ख्र है। वो कहते हैं कि मुझे मालूम था मेरा बेटा एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। बेटा, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। दुनिया में चाहे कितने ही धोखेबाज क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। जल्दी वापस आना। तुम्हारी माँ ज़ैनब। खत पढ़कर इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी माँ उसके पास खड़ी उसे दुआ दे रही हो। इसी लम्हे उसने दिल में अहद कर लिया कि वो इतना कामयाब बनेगा कि उसके माँ बाप को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान के सफ़र की तैयारियां शुरू हो गईं। इमरान ने अबू तालिब की मदद से बेहतरीन सामान खरीदा। रेशमी कपड़े, खुशबूदार मसाले, कीमती जवाहरात और कई कीमती चीज़ें जो हिंदुस्तान में बिक सकती थीं। उसने ऊँटों की लंबी कतार तैयार की और 20 आदमियों की एक टीम बनाई। रवाना होने से पहले अबू तालिब ने उसे बुलाया और आखिरी नसीहत की, बेटा इमरान, ये सफ़र बहुत लंबा है। रास्ते में डाकू भी हैं, तूफ़ान भी और बीमारियां भी। हमेशा होशियार रहना, कभी किसी के साथ बदसलूकी मत करना, गरीबों और मुसाफिरों की मदद करना, और सबसे अहम, अपने वालिदैन की दुआओं को हमेशा अपने साथ रखना। इमरान ने एहतराम से अबू तालिब के कदम छुए और दुआ मांगी। फिर उसने काफिले को हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया। रेगिस्तान का सफ़र बहुत मुश्किल था। दिन में तेज़ धूप, रात में सर्द हवाएं और कई बार रास्ता भटक जाने का खौफ। इमरान हर वक्त ऊँटों और सामान की निगरानी करता। वो अपने साथियों के साथ भाइयों जैसा सलूक करता। कई बार वो खुद भूखा रह जाता मगर अपने साथियों को खाने में कमी नहीं आने देता था। लेकिन एक दिन रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसा वाक़या पेश आने वाला था जो इमरान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। रेगिस्तान के दरमियान अचानक एक खौफनाक आंधी उठ खड़ी हुई। रेत के बादलों ने पूरा आसमान ढांप लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऊंट बदकने लगे और काफले के लोग घबराकर चीखने लगे, हम बर्बाद हो गए। लेकिन इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, डरो मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। सब लोग जमीन पर बैठ जाओ, ऊंटों को मजबूती से बांध लो और अल्लाह का नाम लो। उसने सबको इकट्ठा किया, ऊंटों को एक दूसरे से बांधा और खुद तूफान के सामने डटकर खड़ा हो गया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से बचा ले। अगर हम सलामत बच गए तो मैं हमेशा तेरे बंदों की मदद करूंगा। तूफान कई घंटों तक चलता रहा, फिर अचानक रुक गया। जब रेत हटी तो सबने हैरत से देखा कि ऊंट और सामान तकरीबन महफूज है। इमरान के साथियों ने उसे गले लगा लिया। इमरान, तुमने हमारी जान बचा ली। इमरान ने आजिज़ी से कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी कोई ख़ास बात नहीं। इस वाक़े के बाद इमरान का हौसला और मजबूत हो गया। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह उसके साथ है। कई दिनों के सफ़र के बाद उन्होंने एक बड़ी दरिया पार की और हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। यहाँ की हरियाली, दरिया और घने जंगल देखकर इमरान हैरान रह गया। रेगिस्तान के बाद ये जगह उसे जन्नत से कम नहीं लग रही थी। काफिला एक बड़े शहर की तरफ बढ़ा जिसका नाम था कन्नौज। इस जमाने में ये हिंदुस्तान का एक मशहूर तिजारती मरकज था। यहाँ के राजे, अमीर और बड़े लोग रेशम, खुशबू और कीमती जवाहरात के शौकीन थे। इमरान ने शहर के बाहर अपना कारवां सराय कायम किया और सबसे पहले राजा से मुलाकात की इजाज़त मांगी।
उसने सोचा कि अगर राजा को इसका सामान पसंद आ गया तो बहुत बड़ा फायदा होगा। चंद दिन के इंतजार के बाद उसे शाही दरबार में बुलाया गया। शाही महल देखकर इमरान हैरान रह गया। सोने चांदी से सजे सतून, रंगीन कालीन, हाथी दांत का बना हुआ फर्नीचर और दरमियान में तख्त पर बैठा हुआ राजा। उसके गले में मोतियों का हार और सर पर सोने का ताज था। इमरान ने अदब से सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं बसरा से आने वाला एक ताजर हूं। मैं आपके लिए बेहतरीन रेशम, नायाब मसाले और कीमती जवाहरात लाया हूं। अगर इजाजत दें तो अपना सामान पेश करूं। राजा को इमरान की शायस्तगी और साफ गुफ्तगू पसंद आई। उसने कहा, बहुत अच्छा, पेश करो। जब इमरान के साथी सामान लेकर आए तो दरबार हैरान रह गया। नाजुक रेशमी कपड़े देखकर राजा की आंखें चमक उठी। खुशबूदार मसालों की महक से पूरा दरबार महक गया और जवाहरात की चमक देखकर सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, ये वाकई कीमती सामान है, इसकी कीमत क्या है? इमरान ने ईमानदारी से मुनासिब कीमत बताई। वो ज्यादा लालच नहीं करना चाहता था। राजा इसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने सारा सामान खरीद लिया और इमरान को इनाम में मजीद सोने के सिक्के भी दिए। इमरान ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने जवाब दिया, इमरान हुजूर। राजा मुस्कुराकर बोला, इमरान, तुम ना सिर्फ एक अच्छे ताजिर हो बल्कि एक नेक इंसान भी लगते हो। मेरे दरबार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अगर कभी मदद चाहिए हो तो बिला झिझक आना। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन रंग लाने लगा है। मगर जिंदगी के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। शहर में एक बहुत अमीर ताजिर था जिसका नाम था सेठ धर्मपाल। वो इलाके का सबसे बड़ा सूदखोर था और किसी नए ताजिर को कामयाब होते देखना उसे पसंद नहीं था। जब उसे इमरान के बारे में पता चला तो वो हसद से भर गया। उसने अपने आदमियों को इमरान पर नजर रखने के लिए लगा दिया। जब उसे मालूम हुआ कि इमरान के पास कीमती सामान भी है और राजा से भी अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं तो उसने उसे बर्बाद करने की साजिश कर डाली। एक रात जब इमरान कारवान सराय में सो रहा था, उसके गोदाम में आग लगा दी गई। आग ने चंद लम्हों में खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। जब इमरान ने देखा कि उसकी पूरी मेहनत जल रही थी तो उसका दिल बैठ गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन अपने साथियों को बचाने लगा और ऊंटों को आग से दूर ले जाने लगा। काफी सामान जलकर खाक हो गया मगर कुछ बच भी गया। सुबह हुई तो इमरान मलबे के दरमियान बैठा सर पकड़े सोच रहा था, क्या ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? उसे अपने वालिद सलीम की बात याद आई। बेटा, जब मुसीबत आए तो घबराना नहीं, सब्र करना और अल्लाह से दुआ मांगना। इमरान ने वजू किया और नमाज पढ़ी, फिर हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, इस मुसीबत से निकलने की ताकत दे। इस आग ने मेरा सामान जलाया है मगर मेरा ईमान नहीं। इसी वक्त वहाँ एक बूढ़ा दरवेश आ पहुंचा। वही दरवेश जो बरसों पहले इमरान के गांव आया था। उसने इमरान के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इस आग में तुम्हारा सामान जला है मगर तुम्हारी किस्मत नहीं जली। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाना है। ये सिर्फ एक इम्तिहान था। उठो और आगे बढ़ो। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं? दरवेश मुस्कुराया और उसे एक छोटी सी थैली दी। उसमें चंद पत्थर थे। वो बोला, ये आम पत्थर नहीं, ये कीमती याकूत और नीलम है। इन्हें बेचकर तुम दोबारा शुरू कर सकते हो, मगर याद रखो, असल दौलत तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है। इमरान हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, ये तो बहुत कीमती है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? दरवेश ने जवाब दिया, जब अल्लाह देता है तो हिसाब से देता है। आज तुमने वो काम किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। आग में भी अल्लाह को याद रखा, यही तुम्हारी असल कामयाबी है। ये कहकर वो दरवेश वहां से चला गया। इस वाक़े ने इमरान के ईमान को और मजबूत कर दिया। उसने दरवेश के दिए हुए जवाहरात बेचे और अच्छी खासी रकम हासिल कर ली। फिर उसने दोबारा तिजारत शुरू की, मगर इस बार पहले से ज़्यादा समझदारी के साथ। राजा की सरपरस्ती में उसने शहर के सबसे बड़े बाजार में अपनी दुकान कायम कर ली और कुछ ही वक्त में इमरान का नाम पूरे इलाके में एक ईमानदार और कामयाब ताजिर के तौर पर मशहूर होने लगा। मगर तकदीर अभी उसे एक और हैरान कुन मोड़ देने वाली थी। वो मोड़ जिसके बाद एक दिन वही इमरान अपने गाँव वापस लौटेगा और वहाँ उसका सामना कासिम और काशिफ से होगा। और उस दिन सबको पता चलेगा कि अल्लाह पर यकीन रखने वाले की तकदीर कैसे बदलती है। लेकिन सेठ जगदेश की नजर अभी भी इमरान पर थी। वो उसे कामयाब होते देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। एक दिन उसने इमरान को अपने पास बुलाया। बज़ाहिर तो वो दोस्ताना गुफ्तगू करना चाहता था, मगर हकीकत में वो एक नई चाल चलने वाला था। मगर इमरान भी अब वो सादा लड़का नहीं रहा था। उसने फौरन उसकी नीयत भांप ली, लेकिन उसने सीधा मुकाबला करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया।
उसे यकीन था कि आखिरकार सच ही जीतता है। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इमरान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन राजा के दरबार में एक मुश्किल मुकदमा पेश हुआ। दो बड़े ताजिरों के बीच में एक बहुत बड़े सौदे पर झगड़ा हो गया था। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे और दरबार के किसी शख्स से भी इंसाफ नहीं हो पा रहा था। राजा ने फौरन हुक्म दिया, इमरान को बुलाया जाए, क्योंकि उसकी ईमानदारी और दानाई की शोहरत अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। जब इमरान दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा, इमरान, तुम एक परदेसी हो, इसलिए यहां किसी से तुम्हारा कोई जाती ताल्लुक नहीं। तुम नेक भी हो और समझदार भी, इसीलिए इस मुकदमे का फैसला तुम ही करो। इमरान ने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया। फिर उसने दोनों ताजिरों की बात गौर से सुनी, गवाहों से सवाल किए, हर पहलू को समझा और आखिर में ऐसा इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाया कि पूरा दरबार हैरान रह गया। उसका फैसला इतना वाज़ेह और मुनसफाना था कि दोनों फरीक मुतमईन हो गए। राजा बहुत खुश हुआ। वो अपने तख्त से उठा, इमरान को गले लगाया और कहा, इमरान, मुझे तुम जैसे नेक और इंसाफ पसंद इंसान की सख्त ज़रूरत थी। आज से तुम मेरे खास मुशीर हो और मैं तुम्हें इस शहर का काजी मुकर्रर करता हूँ। ये सुनकर इमरान को यकीन ही नहीं आ रहा था। जो लड़का कभी गुर्बत और बेइज्जती के दिन देख चुका था, आज वो एक बड़े शहर का काजी बन चुका था। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर पड़ा। इसी दिन उसने अपने गांव एक कासिद भेजा। उसके साथ उसने अपने वालिदैन के लिए बहुत से तोहफे भेजे और एक ख़त लिखा, अब्बू और अम्मी, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है, मैं जल्द आपसे मिलने आ रहा हूँ। मगर इमरान की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। काजी बनने के बाद उसके सामने कई ऐसे मुकदमे आए जिनमें सेठ जगदीश का नाम शामिल था। सेठ ने सोचा, अगर इमरान को दोस्त बना लिया जाए तो मुश्किलों से बचा जा सकता है। उसने इमरान के पास बड़ी रकम बतौर रिश्वत भेजी। मकसद ये था कि एक मुकदमे में फ़ैसला उसके हक़ में हो जाए। जब इमरान ने वो रकम देखी तो उसे शदीद गुस्सा आया। उसने उस आदमी को बुलाया जो पैसे लाया था और कहा, जाओ सेठ से कह दो कि इमरान रिश्वत नहीं लेता, मेरा अल्लाह मुझे इससे कहीं ज़्यादा रिस्क देने वाला है। दुनिया की कोई ताकत इंसाफ को ख़रीद नहीं सकती। जब सेठ जगदीश ने यह जवाब सुना तो वो हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतनी बड़ी रकम ठुकरा सकता है। अगले ही दिन वो खुद इमरान के पास आया। उसने कहा, इमरान, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि असल ताकत रिश्वत में नहीं बल्कि ईमानदारी में है। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं भी सच की राह पर चलूँगा। यूं इमरान की ईमानदारी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। अब पूरे शहर में इमरान की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, देखो इस ताजिर को जो कभी गरीब था और आज काजी है, इसकी कामयाबी का राज क्या है? और जवाब मिलता, वालिदैन की दुआएं, अल्लाह पर यकीन और ईमानदारी। कुछ अरसे बाद इमरान ने सोचा कि वो अपने वालिदैन से मिलने जाए। उसने राजा से इजाज़त ली और एक बड़ा काफिला लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ बहुत से तोहफे थे, रेशमी कपड़े, कीमती जवाहरात, नायाब खाने और गांव वालों के लिए भी बहुत सी सौगातें थीं। रास्ते में उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं। उसे वो दिन याद आया जब वो कासिम के सामने मदद मांगने गया था और उसे जलील होना पड़ा था। आज वही इमरान एक अमीर काजी बनकर वापस लौट रहा था, मगर उसके दिल में ज़रा सा भी गुरूर नहीं था। वो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके वालिदैन का छोटा सा घर वैसा ही है। वो दौड़ कर गया और अपने अब्बू अम्मी के कदमों में झुक गया। उन्होंने उसे दुआएं दी और गले से लगा लिया। उसकी अम्मी ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इमरान ने उन्हें बताया कि कैसे अल्लाह ने उसकी मदद की, कैसे उसने मुश्किलात का सामना किया और कैसे उसका ईमान कभी कमज़ोर नहीं हुआ। ये सुनकर उसके वालिद सलीम ने कहा, बेटा, हमें मालूम था कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। माँ बाप की दुआ और अल्लाह पर भरोसा, ये दो चीज़ें तकदीर बदल देती हैं। गाँव वालों ने इमरान का शानदार इस्तकबाल किया। जब वो कासिम की दुकान के सामने से गुजरा तो कासिम और काशिफ घबरा गए। वो दुकान के अंदर छुपने लगे, मगर इमरान मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने आया हूँ। उसने कासिम के लिए भी एक तोहफा भेजा। ये देखकर कासिम को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने इमरान से माफ़ी मांग ली। उस रात पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। इमरान ने गांव के तमाम गरीबों को खाना खिलाया, उन्हें कपड़े दिए और उनकी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वालिदैन की दुआएं इंसानी शक्ल इख्तियार करके उनके सामने खड़ी हों। मगर इमरान जानता था ये उसकी मंजिल का आखिरी पड़ाव नहीं था। उसने अहद किया कि वो हमेशा नेकी की राह पर चलेगा और जो कुछ उसने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएगा। कुछ दिन बाद उसने अपने वालिदैन से कहा, अबू अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ शहर चलें। मगर उसके वालिद सलीम ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में रहना चाहते हैं। हमें शहर की चमक दमक नहीं चाहिए। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जाओ और लोगों की भलाई करते रहो, यही हमारी खुशी है। उसकी माँ ज़ैनब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी गुरूर ना करना, हमेशा गरीबों और बेसहारा लोगों का ख्याल रखना। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके बंदों की मदद के लिए है। ये सब दरअसल अल्लाह का एक इम्तिहान था। इमरान की आंखें नम हो गईं। उसने अपने वालिदैन से वादा किया कि वो उनकी हर नसीहत को हमेशा अपने दिल में बसाए रखेगा। गांव में रहते हुए उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि यहाँ एक मदरसा और एक मस्जिद बनवाई जाए ताकि गरीब बच्चों को तालीम मिल सके और लोगों को इबादत की जगह भी मुयस्सर आए। चुनांचे उसने फौरन इस काम का आगाज करवा दिया। मदरसे और मस्जिद की जिम्मेदारी उसने गांव के मौलाना साहब को सौंपी और कहा, इस काम में जितना भी खर्च आएगा मैं बर्दाश्त करूंगा। गांव छोड़ने से पहले इमरान कासिम के घर गया। कासिम उसे देखते ही शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, इमरान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को बहुत तकलीफ दी थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इमरान मुस्कुरा दिया। उसने कहा, कासिम चचा, मैंने कभी दिल में कोई बुराई नहीं रखी, बल्कि आप ही की बातों ने मुझे सब्र और अल्लाह पर यकीन सिखाया। आपकी वजह से मैं और मजबूत हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी सीधी राह दिखाए। ये सुनकर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इमरान को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज मुझे यकीन हो गया कि असल अमीर वो नहीं जिसके पास सोना चांदी हो। असल अमीर वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और इंसानियत हो। कुछ दिन बाद इमरान वापस शहर आ गया। अब वो सिर्फ एक काजी नहीं था बल्कि राजा का सबसे करीबी मुशीर भी बन चुका था। हर मुश्किल मामले में उसकी अक्ल, दयानत और इंसाफ पसंदी काम आती। उसने कई ऐसे कवानीन बनवाए जिनसे गरीबों और कमज़ोरों को इंसाफ मिलने लगा। एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, इमरान, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कोई बेटा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम इस सल्तनत को संभालो। मैं तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर इमरान हैरान रह गया। उसने आजिज़ी से कहा, महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो एक परदेसी हूँ, लोग क्या कहेंगे? राजा मुस्कुरा कर बोला, परदेसी या देसी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क इंसानियत और नेकी का होता है। मैंने तुम्हें परखा है और मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे बादशाह बनोगे। इमरान ने फ़ौरन सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने कहा, महाराज, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं हमेशा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा, इंसाफ करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा और किसी पर जुल्म नहीं होने दूँगा। राजा बहुत खुश हुआ और उसे दुआ दी। चंद महीनों बाद राजा का इंतकाल हो गया और इमरान को सल्तनत की बागडोर सौंप दी गई। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को यकीन था कि इमरान एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह साबित होगा। बादशाह बनने के बाद भी इमरान ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो आज भी ज़मीन पर सोता, सादा खाना खाता और फजर की नमाज के लिए खुद बेदार होता। उसके दरबार में सब बराबर थे। अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, सब के लिए एक ही कानून था। उसने ऐलान किया, मेरी सल्तनत में कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उसने ख़ास दिन मुकर्रर किया जिसे दीवाने आम कहा जाता था। इस दिन वो खुद बैठता और लोगों की शिकायतें सुनता। उसके इंसाफ की मिसालें दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि उसके वालिद सलीम की तबीयत बहुत ख़राब है। इमरान फ़ौरन गांव के लिए रवाना हो गया। जब वो पहुंचा तो देखा कि उसके वालिद बहुत कमज़ोर हो चुके थे। आंखों की रोशनी तकरीबन जा चुकी थी, मगर चेहरे पर वही नूर था। इमरान उनके कदमों में बैठ गया और रोने लगा। सलीम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रो मत। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें इस मकाम पर देखा। मेरी आंखें नहीं देखती, मगर मेरा दिल देख रहा है कि तुम एक नेक बादशाह हो। यही मेरी कामयाबी है। इमरान ने कहा, अब्बू, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। सलीम ने ज़ैनब को आवाज़ दी। दोनों ने इमरान के सर पर हाथ रखा और दुआ की, या अल्लाह, हमारे बेटे को हमेशा नेकी की राह पर रखना, इसके ज़रिए हमेशा इंसाफ और रहमत फैलाना। इसी रात सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमरान बहुत गमगीन हुआ, मगर उसने सब्र किया।
उसने अपने वालिद को उसी गांव में दफन किया जहां उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी थी। उसने उनकी कब्र के पास एक छोटी सी मस्जिद भी बनवाई। अब उसकी वालिदा ज़ैनब अकेली रह गई थीं। इमरान चाहता था कि वो उसके साथ शहर चले, मगर ज़ैनब ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा मैं इसी मिट्टी में रहूंगी, अपने सलीम के पास। तुम जाओ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। इमरान वापस शहर लौट आया, मगर अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। उसने अपनी वालिदा के लिए गांव में पक्का घर बनवाया, खादिम रखे और हर महीने खुद जाकर उनकी खैरियत पूछता। उसकी नेकी और इंसाफ की शोहरत बसरा से लेकर बगदाद तक फैल गई। एक दिन अबू तालिब भी उससे मिलने आए, वही शख्स जिसने उसे जिंदगी में पहला मौका दिया था। इमरान उन्हें देखकर फौरन उनके कदमों में झुक गया। उसने कहा, आप वो इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर यकीन किया, आपकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। अबू तालिब ने उसे उठाया और कहा, बेटा मैंने सिर्फ एक मौका दिया था, असल कामयाबी तुम्हारी मेहनत और अल्लाह पर यकीन की है। एक दिन इमरान के दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में लाठी थी। पहरेदार उसे रोकने लगे, मगर वो जोर से बोली, मुझे बादशाह से मिलना है, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। इमरान ने उसकी आवाज सुन ली। उसने फौरन कहा, उसे अंदर आने दो। बूढ़ी औरत दरबार में आई और कांपती आवाज में बोली, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब बेवा हूं, मेरे बेटे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। इमरान ने उसे एहतराम से बिठाया और पानी पिलाया। फिर उसने फौरन इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीक से पता चला कि एक अमीर आदमी ने खुद ही चोरी करवाई थी और इल्ज़ाम उस गरीब औरत के बेटे पर लगा दिया था ताकि उसकी ज़मीन हथियाई जा सके। इमरान ने खुद इस मुकदमे की समाअत शुरू की। उसने सबूत इकट्ठे किए, गवाहों से सवालात किए और फिर ऐसा फैसला सुनाने वाला था जिससे पूरी सल्तनत में इंसाफ की एक नई मिसाल कायम होने वाली थी। इमरान ने इंसाफ और सच्चाई को कायम रखकर एक गरीब औरत के बेटे को बचाया। औरत ने उसके कदम पकड़े और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। इमरान ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, अम्मी ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। उस रात इमरान ने सोचा, मेरी माँ भी अकेली है, शायद उसे भी कभी मदद की ज़रूरत हो। उसने फैसला किया कि वो अब हर हफ्ते गांव जाया और जब भी मौका मिला अपनी माँ से मिलेगा। इमरान ने अपनी रियासत में कई इस्लाहात की। एक बड़ा अस्पताल बनाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। एक बड़ी सराय बनवाई ताकि मुसाफिर खा सकें और सो सकें। हिदायत दी कि कोई भी ताजिर गरीबों से ज़्यादा मुनाफा ना ले। उसके इंसाफ और नेकी की वजह से रियासत में खुशहाली छा गई। लोग उसे हमजाए आदिल कहकर पुकारने लगे। कई साल गुजर गए। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब है। वो फ़ौरन गांव पहुंचा। ज़ैनब बिस्तर पर थीं, मगर जब उन्होंने इमरान को देखा तो उनका चेहरा खिल उठा। इमरान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी मैं आ गया। ज़ैनब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा मुझे पता था तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपना हाथ इमरान के सर पर रखा और कहा, बेटा मुझे जाना है अपने सलीम के पास, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। इमरान ने आजिज़ी से कहा, बोलें अम्मी मैं हर वादा पूरा करूँगा। ज़ैनब ने कहा, बेटा हमेशा नेकी की राह पर चलो, कभी किसी पर जुल्म ना करो, गरीबों की मदद करना और सबसे ज़रूरी अल्लाह पर भरोसा रखना, यही चीज़ तुम्हें इस मुकाम तक ले आई। इस भरोसे को कभी ना टूटने देना। इमरान रो दिया। उसने कहा, अम्मी मैं वादा करता हूँ मैं आप और अबू के सिखाए हुए रास्ते से कभी नहीं भटकूंगा। ज़ैनब ने आखिरी बार उसे देखा, मुस्कुराई और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। इमरान ने माँ को भी अपने वालिद सलीम के साथ दफनाया। उन्होंने उनके कब्र के पास एक बाग लगवाया और हमेशा चिराग जलाने का इंतज़ाम किया। शहर वापस जाकर इमरान ने अपनी माँ की याद में एक बड़ा मदरसा बनाया जिसका नाम रखा आमीना अल मदरसा। यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। एक और मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा फ़कीरों की मस्जिद। अब इमरान बूढ़ा हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, मगर चेहरे पर वही नूर और मुस्कान थी जो वालिदैन के चेहरों पर थी। उसने कभी शादी नहीं की। कहा, मेरी शादी तो इस रियासत के लोगों के साथ हो चुकी है, मेरी औलाद यहाँ के लोग हैं। एक दिन इमरान ने अपने सबसे करीबी मुशीर उमर को बुलाया
उमर एक यतीम नौजवान था जिसे इमरान ने पाला और इंसाफ की तालीम दी थी। इमरान ने उसे कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लो, लेकिन याद रखो लायक वही है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और लोगों से मोहब्बत हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम ऐसा ही हो। इमरान ने उमर को अपनी जिंदगी की हर कहानी सुनाई, कैसे वो गुर्बत में पलकर बड़ा हुआ, कैसे वालिदैन ने उसको अल्लाह पर यकीन सिखाया, कैसे मुश्किलात का सामना किया और कैसे अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। उसने कहा, उमर, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह पर यकीन है। चाहे तूफान आए या ज़मीन व आसमान पलट जाए, यकीन न खो। माँ बाप की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, बशर्ते कि तुम उन्हें याद रखो और नेकी की राह पर चलो। उमर ने इमरान के पांव छूकर कहा, हुजूर, मैं आपकी हर बात दिल में बसाऊंगा। चंद दिन बाद इमरान दुनिया से रुखसत हो गया। वो अपने महल में नहीं बल्कि उसी सादा कमरे में सोया था जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। चेहरे पर वही नूर और मुस्कान थी। खबर सुनकर पूरा शहर गम में डूब गया। अमीर, गरीब, बूढ़े और जवान सब रो रहे थे। इमरान को उस कब्रिस्तान में दफन किया गया जहां उसके वालिदैन थे। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहाँ हमजाए आदिल आराम फरमा है, जिसे वालिदैन की दुआओं और अल्लाह के फजल ने बुलंद किया। उमर ने सल्तनत संभाली और इमरान के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। उसने भी इमरान की तरह इंसाफ किया, गरीबों की मदद की और नेकी की राह पर अमल किया। अब इमरान की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं रही बल्कि एक जिंदा मिसाल बन गई। वालिदैन अपने बच्चों को यही नसीहत देते, अल्लाह पर यकीन रखो, नेकी करो और अपने वालिदैन की दुआओं को दिल में बसाओ। यही जिंदगी बदल देने वाला राज है। अगर आपको इमरान की कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आपको ऐसी मजीद सबक आमोज और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में कौन सा लम्हा ऐसा था जिसने आपका हौसला बढ़ाया।